Okay, good evening, everyone. So, just wait. Good evening, everyone. So, today we start. First of all, especially some numerical related with the coefficient of restitution. So, it's a very important in terms of entrance exam. Very important in terms of entrance exam. So, basically, see what happened. Suppose this is your floor, and this floor is not perfectly elastic. What do you mean by perfectly elastic? If you release a ball from a height h, if it is perfectly elastic, then after collision, it again move on to the same height. But if it is not perfectly elastic, it not raise up to the same height. Next time it will be raised a little bit less height than the previous one. And again, it is come back. Then again, it will be collide. Although these are in the same line, but if I make it in the same line, the problem is that you don't understand it. So I make it in different line. The first one is fall and then again rise and then again fall, again rise. Okay. So every time it will be decrease its height. Second time is h2. Then again rise. Third time is h3. And so on. Yes or no? And it's in the same line. Actually, this whole thing happened in the same line. If you fall from here, it will be like this. Then again, it will be moved like this. Then again, it will be formed. Then again, it will be this. Then again, we fall. Then again, it will be here. Then again, fall here. Understand, na? But if I draw in this way, the problem is that you can't understand anything. That's why I make it a different line. Everyone, is it okay? Yes, sir. अब देखो इससे हम लोग क्या क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं. सबसे तो पहले सबसे पहले कि velocity before hitting the ground root under 2gh. We know, if you forget, we can use the conservation of energy also. That is half mv square is mgh. So b is root under 2gh. You can use this also. Now this is the first collision. After that, this is the second collision v1, and then it will moving this and then again return with the same velocity v1. Again it will be raising up with the velocity v2, because every time after collision its velocity change. So if E is the coefficient of restitution, what is the formula? If E is the coefficient of restitution, what is the formula? Velocity of separation. So for the first case, v1 by velocity of approach, that is v for the first case. For the second case, see v1, second case, this one, v1 is the velocity before collision, v2 is the velocity after collision. So separation by approach. Similarly, for the third collision, v3 by v2 and so on. So if we want to find out v1, I can say ev. If we want to find v2, I can say ev1. If we want to say v3, that is ev2 and so on. So vn, that is evn. Now, what do you mean by v1? ev. So what we can write? E square v. Sir. हाँ. Sir, ये E क्या है समझे नहीं. E is the coefficient of restitution. E अगर 1 होता है perfectly elastic, तो before and after same. मानो बोल दिया E 0.9. तो velocity मानो before hitting ये 10 meter per second था. After this क्या हो गया? EV, that is 0.9 into 10, that means 9 meter per second हो जाएगा. Coefficient of restitution. Oh, ठीक है सर. याद नहीं है? हाँ सर, याद आ गया. Restitution before and after. So E2V, that is E3V. ऐसा करते करते Vn होगा En-1, that is e to the power nv. तो मेरा Vn जो है याद रखना e to the power nv. तो इसके ऊपर डायरेक्ट शॉर्टकट क्वेश्चन दे सकता है कि मानो बोला यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया गया, ये 10 मीटर है. 10th कॉलिजन के बाद, अच्छा E का वैल्यू दे दिया है मानो 0.7. 10th कॉलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा?
0.710 VB is root under 2GH. So 0.710, 0.7 to the power 10, 2 into 10 into 10. Understand? Yes, sir. So if you're able to find out Vn for each collision, similarly, you can able to find कि यहाँ से जो नीचे आया, सपोज दैट टाइम इज t, फिर यहाँ से ये गया t1, फिर रिटर्न आया t1, फिर यहाँ से ऊपर गया t2, फिर नीचे आया t2. तो ऐसे करके हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं. और फ्री फॉल का टाइम क्या होता है? देखो फ्री फॉल का टाइम क्या होता है, अगर मुझे यहाँ से हाइट पता है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम निकालना है, s is ut plus half a t square, तो 0 plus half g t square and h, so t equals to root under 2h by g, है ना? So I can say ऊपर से नीचे आने में या नीचे से ऊपर जाने का जो टाइम है, this time is equals to, first one is root under 2h by g. अब जब फर्स्ट वन रूट अंडर 2h by g ऊपर से नीचे आया, सेकेंड वाला क्या होगा, थर्ड वाला क्या होगा? You can find out this time of flight by another method also. V equals to u plus at, gt. So t equals to v by g. v मेरा क्या था, before hitting the ground, root under 2gh by t, sorry g, so root under 2h by g. समझ में आया? देखो gt equals to v by g, v क्या, root under 2gh by g, that is root under 2h by g. So ये दोनों टाइम हो गया, that is root under 2h by g. तो अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करो, v equals to u plus gt, initial velocity 0, that is g into t, so t equals to कोई जरूर करेगा, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, एक मिनट. देखो हम लोग ऐसे करके सोच सकते हैं कि v equals to u plus at. मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो है, इसको मानो मैंने v माना, फाइनल वेलोसिटी 0 है, बिकॉज यहाँ से जब ये जा रहा है, यहाँ तक गया तो हाइट 0 हुआ. अरे बाबा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ, ये आया, कोलाइड किया, फिर गया, तो हमने ऊपर से नीचे करो या नीचे से ऊपर ले जाओ. तो अगर हम लोग सोचे कि नीचे से ऊपर जाएगा, सो जो टाइम होगा, या ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर वाला लोगे तो वेलोसिटी 0 करके भी निकालना पड़ेगा, या नीचे से ऊपर जाने के लिए सोचोगे तो इनिशियल को u करके फाइनल को 0 कर दो. तो बात तो एक ही है. तो g इंटू टी, सो मेरा t जो आया v बाई g, जो मैंने पहले भी बताया. अब v का वैल्यू होता है रूट अंडर 2gh, रूट अंडर 2gh बाई g. सो यहाँ से मुझे मिल सकता है रूट अंडर 2h बाई g. ये मेरा टाइम के साथ हाइट का फॉर्मूला है ना. और यहाँ से हम लोगों ने एक चीज और देखा, कि हर बार मेरा फर्स्ट कॉलिजन के बाद v1, सेकेंड कॉलिजन के बाद v2. सो अगर मैं फर्स्ट कॉलिजन का बात करूं, v equals to u plus at, फाइनल 0, दिस इज v1 g t1. सो t1 कितना हो जाएगा, v1 by g, v1 कितना है, ev by g, सो e रूट अंडर 2h by g, मतलब क्या हो गया, et. अगर मैं दूसरा वाला का बात करूं, v2g, that is e square v by g, that is e square by root under 2h by g, that is e square t. तो ये जो है मेरा पहला वाला टाइम. और इसके बाद जितना सारा कॉलिजन होगा, हर कॉलिजन में अपवर्ड जाने के लिए या डाउनवर्ड आने के लिए, हर बार अपवर्ड जाने के लिए या तो डाउनवर्ड आने के लिए क्या हो गया, डिफरेंट होगा. यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मेरा nth कॉलिजन के बाद अपवर्ड जाने के लिए या डाउनवर्ड जाने के लिए टाइम कितना लगेगा,
e to the power n t, और t क्या है, रूट अंडर 2h by g। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, जब मुझे वेलोसिटी मिल गया, जब मुझे टाइम मिल गया, तो मैं एक और चीज निकाल सकता हूं, वो है हाइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर मैं मान लूं मेरा फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो v1 स्क्वायर फर्स्ट वाला आफ्टर कॉलिजन 2gh1, तो मेरा h1 आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन कितना होगा, v1 स्क्वायर बाई 2g। v1 कितना है, ev स्क्वायर बाई 2g, तो ये क्या हो गया, e स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2g। v क्या था, रूट अंडर 2gh, तो ये क्या हो गया, e स्क्वायर इंटू 2gh बाई 2g, तो ये क्या हो गया, e स्क्वायर h। पहला वाला जो हाइट फॉल हुआ उसके रेस्पेक्ट में e स्क्वायर h। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, आफ्टर सेकंड कॉलिजन e टू द पावर 4h, थर्ड कॉलिजन e टू द पावर 6h एंड सो ऑन। तो इससे क्या पता चला, अरे आता क्यों नहीं, हाँ, इससे ये पता चला कि h टू द पावर n अगर मुझे चाहिए, तो h टू द पावर n क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2nh। तो ये तीन फॉर्मूला मेरा इन टर्म्स ऑफ कॉलिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तुम लोगों को पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये बताता हूँ। तो इससे मैंने ये सीखा कि अगर इस तरह का क्वेश्चंस दे, कि अगर तुम्हारा पास इस तरह का क्वेश्चंस आया कि एक बॉल को h हाइट से तुम रिलीज कर रहे हो, दिस इज द वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने का जो टाइम है वो t है, दैट इज रूट अंडर 2h by g। यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि हर एक बार ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो ऊपर जाने का या नीचे आने का टाइम इज दिस वन, वेलोसिटी इज रूट अंडर 2gh, क्योंकि जो भी दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा। ओके, एंड h इज द हाइट। अगर ये दिया हुआ है, माने either you know the h, if you know the h you can find out v and t easily। So on that basis my velocity at any instant is e to the power nv। v का वैल्यू कहां से आओगे, रूट अंडर 2gh। टाइम कितना होगा, हर एक बार कॉलिजन के बाद अप एंड डाउन, दैट इज e to the power n t, और t मेरा क्या है, रूट अंडर 2h by g। और हर बार का हाइट कितना होगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा, दैट इज e to the power 2n into h। h तो तुम्हें पता ही है, ये सर लो, अंडरस्टैंड? Everyone, is it okay? Yes, sir. अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है, वो भी मैं करा देता हूं। देखो, हम लोगों ने, हमारा सिलेबस में भी यही है, स्पेशली थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। तो बोर्ड में भी इसी के ऊपर क्वेश्चंस देगा, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। मेरा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है v1, तुम लोग को याद ही होगा, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 u2। u1 भी वेलोसिटी है, v2 m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 बाई m1 प्लस m2 u1। u1 एंड u2 बोथ आर वेलोसिटी। ये तो मेरा फॉर्मूला है ना, किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए। जब स्कूल का एग्जाम दोगे तो यस, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन ही देगा। स्कूल में एग्जाम करेगा, सिलेबस में वही है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन नहीं होके दूसरा कुछ होगा तो वो देगा ही नहीं ज्यादातर केसेस में। लेकिन जहां तुम एंट्रेंस एग्जाम में घुसा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा सिलेबस में है,
तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन तो दे सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन ही देगा। तो अगर वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन नहीं दिया, अगर वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन नहीं दिया, तो इन दिस केस हाउ यू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो इसके लिए फॉर्मूला याद करने का जो तरीका है, नाउ आई शो यू, note down this formula. So this is the general formula. This is the general formula. जहाँ पे if it is say कि perfectly elastic collision, you just put E का value 1. If it is say perfectly inelastic collision, yeah, perfectly elastic, sorry, or elastic collision, or they can say inelastic collision, you can put E equals to 0. They can ask you find the coefficient of restitution, you can put the value of A. एक ही सेम चीज है, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला m1 माइनस em2 बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस, यहाँ पे 2m2 है तो m2 प्लस em2 बाई m1 प्लस m2। अब देखो अगर परफेक्टली इलास्टिक है, e का वैल्यू 1 कर दो तो पहला वाला फॉर्मूला ही आ जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन तुम किसी भी टीचर को पूछो कि एक सिचुएशन दे दो और ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो उसका हालत खराब हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ई को 0 करना है, ई को 0 कर दो, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। समझ में आया मेरे बात? तो V2 क्या हो जाएगा, m2 माइनस ई m1 बाई m1 प्लस m2। और ये सब फॉर्मूला किसी से शेयर मत करना, हाँ, क्योंकि टीचर लोग देखेगा तो खुद भी नोट डाउन कर लेगा और फिर बोलेगा मैंने बनाया है। ये तुम्हारा है जनरल फॉर्मूला, जो कि कहीं भी वैलिड है, और इससे इसका प्लस पॉइंट ये है कि तुम इससे बहुत जल्दी न्यूमेरिकल कर सकते हो। सिर्फ एक को याद रखना, सिर्फ इसको याद रखना, बस तभी हो जाएगा। m1 माइनस m2 जो था em2 बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 जो था उसको आधा आधा कर लो, m2 प्लस em2 बाई m1 प्लस m2 u2। बस इतना ही करने से हो जाएगा। अब देखो ये सब के ऊपर बेसिस करके मैंने पहले ही बोला था आज हम लोग बहुत सारा क्लास करेंगे। सो हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल्स तुम लोगों को देता है। सबसे पहले ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला दिखाते हैं कि देखो अगर तुम्हें ये पता है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्वेश्चन कितना इजीली बनेगा। हाँ, ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले देने वाला हूँ अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द शीट। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द शीट क्या दिया है, a ball of mass m moving at a speed v, a ball of mass m moving at a speed v makes a head-on collision। देखो head-on collision बोला है with an identical ball at rest। head-on collision बोला है, इलास्टिक नहीं बोला है, at rest। तो ये मेरा हो गया u1, ये मेरा हो गया u2, at rest। A ball of mass m moving with a speed v makes a head-on collision, head-on elastic collision with an identical ball at rest. The kinetic energy of the ball after the collision, the kinetic energy of the ball after the collision, the kinetic energy of the balls after the collision, मतलब total kinetic energy is 2/3 of the original। तो final kinetic energy है 3/4 of the initial kinetic energy। Is it clear everyone? जो दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी लॉस हुआ है ना, एनर्जी लॉस हुआ है। लेकिन ये कि इलास्टिक है, इनइलास्टिक है कि पार्शियल इलास्टिक है, कुछ नहीं बोला है। सिर्फ बोला है एक पार्टिकल का मास m है मूविंग विद वेलोसिटी v, दूसरा जो पार्टिकल है उसका मास m है लेकिन एट रेस्ट है। ये दोनों क्या है, आफ्टर कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इतना सुंदर क्वेश्चन है, देखो लाजवाब क्वेश्चन। तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाँ, सेकंड क्वेश्चन इज, देखो ये भी बहुत सुंदर
शीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही सुंदर, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस, मेंस में भी नहीं, एडवांस में आया। क्या क्वेश्चन वो है? A ball is dropped from a height h. A ball is dropped from a height h. Dropped matlab my initial velocity is 0. A ball is dropped from a height h on the onto a floor. If in each collision its speed become e times of its striking value, माने e is the coefficient of restitution. तो यहाँ पे अगर मेरा वेलोसिटी v है, आफ्टर कॉलिजन इसका वेलोसिटी हो गया v1, दैट इज ev। समझ में आया? हर एक बार कॉलिजन के बाद इसका जो है वेलोसिटी जो है e टाइम्स हो जाता है। क्लियर? माने e इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यस और नो? हाँ सर। निकालना क्या क्या है देखो। नंबर 1 बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्टॉप rebouncing, to stop rebouncing, find number 1 total time। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। नंबर 2 क्या बोला है? फाइंड द टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम। जब तक ये रुका तब तक टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या है? Number 3, find the average force exerted by the ball on the floor using the result of part 1 and 2। तो 1 and 2 को मिला के टोटल एवरेज फोर्स कितना वो फाइंड करो। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा, कोई बोलो क्या आंसर है? हेलो? अच्छा देखो फर्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो तुम लोगों को तो कॉलिजन का तो नोट नहीं भेजा है ना? हेलो? सर कोलिजन का नहीं भेजा। हाँ, वर्क फॉर एनर्जी का भी लास्ट का थोड़ा पार्ट बाकी है, वो आज भेज दूंगा। कॉलिजन का भी आज भेज दूंगा, आज कॉलिजन खत्म हो जाएगा। सो इसमें देखो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है कि अभी अभी मैंने बताया v1 का फॉर्मूला क्या था, दोनों का मास सेम है, m माइनस em बाई m प्लस m माने 2m, और एक का वेलोसिटी है u, u1 का वेलोसिटी है v ना, u1 का वेलोसिटी है v, और u2 जो है वो 0 है। तो कितना हो गया? 1 माइनस e बाई 2 v है ना? ये सुनो। यस सर। और दूसरा का क्या है? v2, दैट इज m माइनस m2 m माइनस em बाई 2m इंटू v u2 विच इज 0 प्लस क्या था? m प्लस em बाई 2m इंटू u1 कितना है? v, क्योंकि u2 मेरा, u1 जो है वो v है, u2 मेरा क्या है? 0 है। तो ये क्या आया? 1 प्लस e बाई 2 v। तो दिस इज द बेस्ट वे और इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन। अदरवाइज ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत समय लगता है। ठीक है, सो अब देखो, अब ये कितना आसान हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द बॉल्स इज 3/4। हाँ सर तो वो ई और वी वैसे ही रह जाएगा। हाँ, यहाँ से तो ई निकालना है ना, मुझे तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना हाँ है। सर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज द 3/4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना? और काइनेटिक एनर्जी मेरा इनिशियल कितना है? हाफ m इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि एक तो रेस्ट में है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है मेरा कितना है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये दोनों है, सो हाफ m इंटू v1, दैट इज, या हम लोग पहले v1 v2 ही लिखते हैं, v1 स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू v2 स्क्वायर। ये मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल है,
which is equals to 3/4 of the initial kinetic energy, माने 1/2 mv², है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो हाफ एम बी को काट के निकाल सकता हूँ। हाफ एम बी को काट दिया तो V1 का मतलब 1 माइनस E/2 V का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस E/2 V का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 V²। तो मैं V² को भी काट दिया तो मेरे को क्या बचा 1 माइनस E होल स्क्वायर, that is 1 plus E² minus 2E/4। यहाँ से क्या हो गया 1 plus E² plus 2E/4 that is 3/4। तो मैं चाहूँ तो ये 4 को काट दिया, ये 2E कट गया तो मेरे पास कितना बचा 2 plus 2E² is 3। that means 2E² कितना आया 3 minus 2 that is 1। So 2E² आया 1, E² आया 1/2, E आया 1/2। देखा कितना इजीली आ गया। अगर तुम ये फॉर्मूला नहीं जानते हो तो इसको करने में हालत खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पास सिर्फ कंजर्वेशन मोमेंटम है और कुछ भी नहीं है ना? So that's why it's a very very important formula। तो ये तो मैंने पहला क्वेश्चन दिखाया तुम लोगों को। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के लिए मैंने फिर से एक बार तुम लोगों को ये डेटा दिखा देता है, तुम लोगों को आसानी होगा। क्या क्या डेटा में था? डेटा में मेरा था कि टाइम जो है √2h/g, वेलोसिटी है √2gh। हर एक वेलोसिटी जो है फॉर nth कॉलिजन e⁻nv टाइम e⁻nt एंड हाइट e⁻2nh। अब जो सेकंड क्वेश्चन है मैं इसको फिर से लिखने जा रहा हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर कितना बोला था 16। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बॉल को h हाइट से रिलीज किया गया तो ऑब्वियसली बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये हो जाएगा √2gh। और ये जाके पहला बार कॉलिजन हुआ V1, फिर ये यहाँ तक गया, फिर ये नीचे आया, यहाँ पे हुआ V1, फिर ये आफ्टर कॉलिजन इसका स्पीड वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, फिर ये और थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ये आएगा V2, आफ्टर कॉलिजन इसका वेलोसिटी फिर चेंज हो जाएगा V3। और ऐसा करते करते कितना बार होगा? ये इनफाइनिट नंबर बार होगा। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट होगा। रेस्ट मतलब धीरे धीरे गुर करके घुरकाते हुए रेस्ट होगा। तो अगर घुरकाते हुए ये रेस्ट में आएगा, अगर वो घुरकाते हुए रेस्ट में आएगा तो मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले टोटल टाइम। तो देखो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या? पहला जो ऊपर से नीचे आया लेट द टाइम इज t। अब दूसरा बार क्या? ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। मैंने जो टाइम का जो फॉर्मूला बोला था tn दैट इज e⁻nt, ये ऊपर जाने का या नीचे आने का? मतलब क्या होना चाहिए 2t1 ऊपर गया नीचे आया, 2t2 ऊपर गया नीचे आया, ऐसे करके अप टू इंफिनिटी। ये सब नो? हाँ सर। तो इसका मतलब t प्लस 2et पहला वाला, दूसरा वाला 2e² अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ से अगर मैं t प्लस 2et को कॉमन लेता हूँ मेरे पास क्या आता? 1 प्लस e² अप टू इंफिनिटी। और यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं हम समेशन ऑफ इनफाइनिट टर्म। समेशन ऑफ इनफाइनिट टर्म अगर है, देखो 1 प्लस e² अप टू इंफिनिटी, इसका कंडीशन है कि e का वैल्यू लेस देन 1। ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो देखो ये क्या है? समेशन ऑफ जीपी है 1 प्लस AR अप टू इंफिनिटी, r इज लेस देन 1। अगर है हाँ एक मिनट, जब ऐसा समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म है इसका फॉर्मूला होता है 1/1 minus r। r is called the common ratio, r is called the sorry 1 नहीं a/1 खोला আছে
a by 1 minus r, a by 1 minus r, a is the first term. मैं इसको फिर से एक बार बता देता हूँ. समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म का जो फॉर्मूला है, a is the first term, r is the common ratio, तो a into ar square up to infinity. Condition is r is less than 1. तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 और r क्या है, r is 1 e. So ऐसा अगर होता है तो इसका फॉर्मूला जो होता है that is a by 1 minus r. इसको नोट डाउन कर. तो यहाँ पे देखो हम लोगों का पास क्या हो रहा, 2t plus 2et, और ये जो आएगा a is the first term that is 1 minus r, r is the common ratio that is e. तो मेरे पास कितना बचा, अगर मैं t को बाहर कर देता हूँ 1 plus 2e by 1 minus e. तो ये क्या आया, ये आया t 1 plus e plus 2e by 1 minus e, that is t. और एक फिर से गलती हुआ, 1 minus e plus 2, that is 1 plus e by 1 minus e. Yes everyone? Yes sir. So ये मेरा आया क्या, टोटल टाइम. जैसे मुझे टोटल टाइम आया, पहला क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल टाइम, दूसरा केस में बोला है फाइंड द टोटल मोमेंटम. ठीक है, फाइंड द टोटल मोमेंटम. तो अगर मुझे टोटल मोमेंटम चाहिए, तो टोटल मोमेंटम कैसे निकालेगा. तो देखो टोटल मोमेंटम के लिए मोमेंटम को अगर मैं p रखता हूँ, पहला वाला मोमेंटम है mv, डायरेक्ट आया, फिर से ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, मतलब 2mv v1 2mv2 2mv3 डॉट 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 डॉट. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, कि पहला वाला जो मोमेंटम है वो mv है, दूसरा वाला 2mev, तीसरा वाला 2me²v, चौथा वाला 2me³ अप टू इंफिनिटी. तो मैं यहाँ से mv को रहने दिया, 2mev को अगर कॉमन ले लिया, 1 plus e² अप टू इंफिनिटी. तो मेरा क्या होगा, mv प्लस 2mev, ये फिर से 1 by 1 minus e. तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, mv को अगर मैं कॉमन ले लिया, 1 plus 2e by 1 minus e, जो मेरा mv 1 plus e by 1 minus e. देखो इसमें एक चीज नहीं पूछा है, जो कि वो भी मैं चाहता हूं कि लिख दूं. मुझे जब याद आया कि इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जैसे h हाइट से वो रिलीज किया, फिर वो बार बार ऐसे ऐसे किया, आके 0 हुआ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस. सो टोटल डिस्टेंस अगर पूछता, डिस्टेंस कवर्ड before coming to टोटल डिस्टेंस कवर्ड, पहला वाला h आया, फिर क्या हो गया, h1 ऊपर गया नीचे आया 2h1, h2 ऊपर गया नीचे गया, ऐसे करके इंफिनिटी. तो यहाँ पे पहला वाला को h लिखेगा, दूसरे वाला जो है e²h, तीसरा वाला e⁴h up to infinity. So अगर मैं h2e²h को कॉमन लेता हूं तो आएगा 1 plus e² plus e⁴ up to infinity. तो यहाँ पे देखो, तो मेरा a is the first one and common ratio is e². So मेरा summation of infinite term का फॉर्मूला क्या था, a by 1 minus r. तो हम क्या लिख सकते हैं, h plus 2e²h, इसको 1 by 1 minus e². तो यहां से अगर मैं h को बाहर कर दूं, 1 plus 2e² by 1 minus e².
तो ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा आएगा, हालांकि ये पूछा नहीं है बट स्टिल वी कैन फाइंड आउट। हाँ, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट इज h 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हालांकि पूछा नहीं है, मैं फिर भी इसको निकाल सकता हूँ। इसके बाद देखो एक और चीज है, इसके बाद एक और चीज है, वो है, कहा गया, कहाँ अटक जाता है। यस, नेक्स्ट वन पूछा है कि 1 और 2 मिल गया, फाइंड द टोटल चेंज इन मोमेंटम मिल गया, फाइंड द टोटल टाइम टेकन निकल गया। थर्ड वन जो तुम्हारा इस क्वेश्चन में पूछा था, द थर्ड वन, हाँ, जो तुम्हारा क्वेश्चन में पूछा है कि एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। सो फोर्स एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल एवरेज फोर्सेस फ्रॉम 1 and 2, टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम। तो मेरा टोटल चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू क्या आया था, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आया था। टोटल चेंज इन मोमेंटम का जो वैल्यू आया था वो एम भी 1 प्लस ई 1 माइनस ई। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम भी 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। और टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या आया था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। टोटल टाइम का जो फॉर्मूला आया था वो आया था, यहाँ पे देखो ये वाला है, टी 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। কি খুঁজতেছো? নিয়ে গেল তো তোমার মা সব? আরে আমি বলতেছি, আমি দিলাম তোমার মা হাতে সব ওষুধগুলো, ওইটা ছিল না তো ওখানে। एम भी बाई टी, अब देखो v का वैल्यू मैंने बोला था h हाइट से गया तो रूट अंडर 2 gh बाई रूट अंडर 2 gh, एंड टाइम का फॉर्मूला 2h बाई g। तो देखो यहाँ से हम लोग 2h को काट सकता है, ये ऊपर ले जाएंगे। सो m रूट अंडर g है और यहाँ पे रूट अंडर g ऊपर चला गया। सो m g, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना छोटा आंसर, एवरेज फोर्स अप्लाइज mg। That's why it's a very very important question. Everyone, is it okay? Everyone, David? Yes, sir. Okay. अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द, ये तुम्हारा बोर्ड सिलेबस में ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि collision in 2 dimension, elastic collision in 2 dimension, elastic collision in 2D, और इसको बोला जाता है oblique collision। oblique collision, oblique collision मतलब ये head on collision नहीं है, ये side by side collision है। तो ये oblique collision में क्या होता है, ऑब्लिक कॉलिजन में क्या होता है, देखो कि मानो मेरे पास ये एक पार्टिकल है, मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, और इलास्टिक कॉलिजन है, हाँ, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर रिमेन सेम। m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2 ड्यूरिंग द कॉलिजन, एंड आफ्टर कॉलिजन they move into different direction. That means मानो after collision ये इधर गया, m1 moving with velocity v1 makes an angle theta, and m2 moving with velocity v2 makes an angle theta 2। इसलिए ये one line पे नहीं है, ये 2 line पे है, मतलब x axis and y axis। That's why it is called the motion in 2 dimension। और ये तभी होता है जब कॉलिजन हेड ऑन नहीं हो, मतलब साइड बाय साइड हो, इसलिए इसको ऑब्लिक कॉलिजन भी बोला जाता है। तो जब भी ऐसा आएगा, देखो जब भी मुझे एंगल मिलेगा, मुझे अलोंग द बेसिस
cos theta and perpendicular with the basis sin theta 1. Similarly यहाँ पे along the basis cos theta 2 perpendicular with the basis sin theta 2 हम लोग लिख सकता है। अब हम लोगों को जो है नॉर्मल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चाहिए और इलास्टिक कोलिजन हमें मालूम है कि टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, सो आई कैन से टोटल मोमेंटम कम अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों? ये 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ है। टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस रिमेन कंजर्व। सो बिफोर कॉलिजन मेरा है m1 u1, ये जो लाइन है मेरा, ये मेरा एक्स एक्सिस का लाइन है। सो m1 u1 प्लस m2 u2 आफ्टर कॉलिजन m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2. Yes or no? Total momentum, yes or no? Momentum along y-axis remain, है ना? वही घरे देखो कंजर्व। तो बिफोर कॉलिजन क्या था? 0 एक्स एक्सिस में, बिफोर कॉलिजन वाई एक्सिस में, बिफोर कॉलिजन कुछ नहीं है। वाई एक्सिस में आफ्टर कॉलिजन देखो एक ऊपर है एक नीचे है, तो ऊपर वाला को अगर हम पॉजिटिव माने तो नीचे वाला को नेगेटिव मान सकते हैं, ऊपर वाला को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे वाला को नेगेटिव मान सकते हैं। सो m1 v1 sin theta 1 if we suppose positive, m2 v2 sin theta 2 we can suppose negative. So second equation, and the third one is total energy is conserved, मतलब total kinetic energy before collision is equals to total kinetic energy after collision. Collision is a scalar quantity, उसमें एंगल वगैरह का जरूरत नहीं है। अगर तुम एंगल को बोलोगे सर अगर हम एंगल के फॉर्मेट में ले cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 1 होता है, मतलब वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब जो कंडीशन है वो सबको फुलफिल करेगा। सो फॉर इलास्टिक कोलिजन, total kinetic energy remain conserved. So half, তুমি যাও আমি একটু পরে খুঁজছি, half m2 u2 square equals to half m1 v1 square half m2 v2 square। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब यही 3 इक्वेशन के ऊपर बेस करके एग्जामिनर कैन गिव यू एनी क्वेश्चन, लाइक एक वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है स्पेशली फॉर द बोर्ड एग्जाम, एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक क्वेश्चन है स्पेशली फॉर द बोर्ड एग्जाम। सो आई वुड लाइक टू शो यू दैट क्वेश्चन आल्सो। ये क्वेश्चन मेरा शीट में क्वेश्चन नंबर 17 बोल के है। ये क्वेश्चन भी डीपीएस में और डिफरेंट स्कूल में कभी कभी अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे देता है, प्रूव दैट in case of oblique elastic collision, two particles of equal masses if one is at rest, मानो ये जो है u है और ये जो है u2 जो है at rest है, u1 जो है वो u है। And prove that in case of oblique elastic collision of two particles of equal masses, if one is at rest, the recoil particles always move off at right angle to each other. दो पार्टिकल इक्वल मास है, डिफरेंट मास होने से ये नहीं होगा, दोनों पार्टिकल का सेम मास है, एक का मानो वेलोसिटी u है, दूसरा वाला रेस्ट में है, तो आफ्टर कॉलिजन ये दोनों जो डिफरेंट एंगल में गया है, मानो ये m मूविंग विद वेलोसिटी v1, ये m मूविंग विद वेलोसिटी v2, और ये जो एंगल है मानो थीटा 1 था, ये जो एंगल है थीटा 2 है। प्रूव दैट कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है 90 डिग्री। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाता है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में दे, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाता है
अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में दे, बट बिलीव मी इट्स नॉट अ सो मच टफ क्वेश्चन. ये सिर्फ इक्वेशन, हाउ यू राइट द इक्वेशन, that is the main thing. So first I can say, first thing which I can say, the total momentum along x axis remain conserved. So m1u plus 0, m1, oh sorry, m1 तो नहीं होगा, सबका सब m होगा. আমি এসে করছি, দাঁড়ান একটু পরে. m1 v1 cos theta 1 plus m2, अरे फिर m2 लिखा, mv2 cos theta 2, मतलब ये हो गया theta 1, सो ये हो गया mv1 cos theta 1, इधर जाएगा mv1 sin theta 1, इधर जाएगा mv2 cos theta 2, same like this mv2 sin theta 2. तो यहां से देखो एक चीज मुझे पता चला, एम अगर काट देता हूं मैं, तो मेरा u जो आएगा that is v1 cos theta 1 plus v2 cos theta 2, that is equals to equation number 1. Yes or no? Everyone, is it Yes, okay? sir. Similarly, the second thing, total momentum along y-axis remain constant. तुम बोल सकते हो as elastic collision. So before collision 0 है, after collision है m v1 sin theta 1 minus m v2 sin theta 2. इससे तुम लोगों को पता चल ही गया है कि हमने मास को नेग्लेक्ट करना चाह रहा है, इसलिए इक्वल मास रखा है. मास को हटा देंगे तो मेरा, क्योंकि मुझे निकालना है एंगल, तो मैं यहाँ से मास को हटा रहा हूँ. v1 sin theta 1 minus v2 sin theta 2 equals to 0. क्यों? क्योंकि मैं अगर 0 बाई मास करूँ तो वो 0 ही होगा. ठीक है. अब देखो the third one is for elastic collision total kinetic energy remain constant. For elastic collision total kinetic energy remain constant. So half m u square plus 0. क्यों? सेकेंड वाला रेस्ट में है. आफ्टर कॉलिजन हाफ m v1 स्क्वायर हाफ m v2 स्क्वायर. फिर मैं m को हटा सकता हूँ. सो u स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन मान लूं, ध्यान से देखो, पहला वाला इक्वेशन और दूसरा वाला इक्वेशन से मेरा तीसरा वाला इक्वेशन के साथ रिलेशन होगा. कैसे? तो हम लोगों को क्या करना है, यही 3 इक्वेशन है. अब इसको क्या है, किसके साथ किसको क्या करने से क्या होगा, यही तुम्हारा मेन काम है. तो देखो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2. स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2. तो मुझे देखो u का स्क्वायर, ये तो 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो इसके साथ u स्क्वायर हो गया. अब इसको स्क्वायर करके अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया, v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2. इसके बाद होगा, ये तो 0 है इधर, 2v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2. अब मैं इसको जब करूंगा तो v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 v2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2. ये माइनस है तो माइनस 2v1 v2 sin थीटा 1 sin थीटा 2. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, यहां से आप देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, v1 स्क्वायर को अगर कॉमन लेता हूँ, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, मैंने ये दोनों को ले लिया है. फिर v2 स्क्वायर के लिए इसको और इसको, तो मैं क्या करूंगा,
cos square theta 2 plus sin square theta 2, और यहाँ से 2v1 v2 को अगर ले लेता हूँ कॉमन, तो cos theta 1 cos theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2। तो देखो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये मेरा आ गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2। कोई मुझे बोलो cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन प्लीज टेल मी। सर एक बार फिर से बोलिए तो। इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एनीवन? cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये सुन लो। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये सुन लो। हाँ सर। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 करूं, इफ आई कंपेयर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, देखो ये और ये सेम है ना, है ना? सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, by comparing equation 3 and 4, by comparing equation 3 and 4, what we can say, देखो 3 में है u square equals to v1 square plus v2 square, इसमें भी है u square equals to v1 square plus v2 square। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं ना कि 2v1 v2 cos थीटा 1 plus थीटा 2 जो है ये 0 होगा तभी पॉसिबल है ना? अगर मेरा ये इसको मैं 0 मान लूं तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो गया ना, हुआ कि नहीं? हाँ सर। तो और ये तभी होगा, v1 v2 तो 0 होता नहीं है। सो इट इज पॉसिबल only when your cos theta 1 plus theta 2 equals to 0, that is cos 90 डिग्री। cos 0 कब होता है? 90 डिग्री पे। cos theta 0 कब होता है? 90 डिग्री पे। सो theta 1 plus theta 2 equals to 90। हो गया ना प्रूफ? ये अगर प्रूफ देता है, समझ लो स्कूल का 90% बच्चा अगर बिना चीटिंग करके, मतलब ऑफलाइन में अगर पूरी एग्जाम होता है और ये अगर दिया तो ज्यादातर बच्चा नहीं कर रहा है। ठीक है? हाँ सर। So that's it for today. I'm